We Women Want aims to provide an open forum for women to discuss topics ranging from childhood to marital abuse, question silences about mental health, infertility, cancer, rise against violence and stereotypes, and question labels. We have come a long way, and the journey has been tough but rewarding and a great learning experience for all of us. I would like to take this opportunity of thanking the men of this country and around the world who are part of this revolution, who are standing not behind but side of their mothers, sisters, daughters and wives and encouraging them to scale greater heights. When we conceptualized We Women Want about 8 months ago, we knew we wanted to create a platform for open conversations, freer discussions, and meaningful lessons. We Women Want honors women with exemplary courage and determination with the Shakti Award for their outstanding contribution in different fields. Shakti Awards are named after the Honorable Mayor of Ambala and Trustee of ITV Foundation, Srimati Shakti Rani Sharma, my mother-in-law, and celebrates women who have been trailblazers and women who simply don't give up. So join the We Women Want community and share your stories which will inspire women and young girls to dream each day. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. That was a wonderful speech, ma'am. Let me quickly invite my colleague Devika Chopra, who will be talking to Shweta Sherawat, the Indian Under-19 T20 World Cup winning captain. Well, starting We Women Want with a very young guest who's joining us virtually, Shweta Sherawat, as my colleague Aarti also pointed out. She led our team to win the Under-19 World Cup for women. So, Shweta, of course, we welcome you to We Women Want. And I'll begin with my first question, if Shweta can hear me. How did it feel, Shweta, when you were selected to be the vice captain of the team for the T20 World Cup? What was that feeling? पता लगा मुझे वर्ल्ड कप के बारे में कि मैं वाइस कैप्टन बनूंगी, तो हम काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और पूरी फैमिली के लिए. And at the same time, describe the moment when you won the trophy, Shweta. वो moment कैसा था आपके लिए? जी, वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि जब हमने ट्रॉफी जीता तो हम इतने खुश थे कि हम ऑलमोस्ट सभी रो दिए थे, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम जीत गए. Shweta, we've seen a lot of heroes now emerging in women's sport as well, boxing, wrestling. Do you feel that the era has come for women's sports to be very popular as men's sports have been? What do you think about that? जी, अब वुमेन्स स्पोर्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे वुमेन्स क्रिकेट में भी WPS स्टार्ट हो गया. इस ईयर जो एडिशन था तो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत सारा क्राउड आया था मुंबई में, तो हमें अच्छा लगा था काफी. And Shweta, what is your hope for the future? होप यही है कि आगे ऐसे ही सब हमको सपोर्ट करते रहें और हम भी अपना बेस्ट दें. Shweta, nobody can make this journey without the support of their family and mentors. So how have your family supported you? मेरे मेंटर्स और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे अभी तक इस जर्नी में. तो जो भी मेरे को नीड्स होते थे, कोचिंग का कुछ भी पूछना होता था तो मैम हमेशा अवेलेबल रहते थे. और फैमिली भी जब भी कहीं भी प्रैक्टिस के लिए जाना हो तो मेरे को हमेशा मतलब प्रोवाइड कराते थे ट्रांसपोर्ट सब कुछ. और आगे भी ऐसे हेल्प मिलती रहेगी. Lovely, lovely. And what is your message to other young girls who are now aspiring to be sports persons? What is your message to them? मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि आप अपना मेहनत करते रहिए और जो अपना प्रोसेस है, जो आपके प्रैक्टिस है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा. And Shweta, who is your biggest sporting hero? It could be male or female, but who do you look up to? एक्सेस में हेल्प कर सकते हैं कि जैसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराना किसी भी स्पोर्ट में, और जैसे स्पॉन्सरशिप इनिशियल लेवल्स पे प्रोवाइड कराना प्लेयर्स को, ताकि उनको बूस्ट मिले, उनको अवार्ड्स देना जिससे Right. तो वो हेल्प करेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा. Great points there. And of course, coming back to who your sporting hero is, male or female?
um, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली तो वैसे मुझे नीरज चोपड़ा, विराट कोहली एंड स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। Lovely. And Shweta, before we let you go, are you exciting for the upcoming World Cup? Is there a lot of excitement? जी, जो मेंस का है, Men's is closer, but of course for women as well, we're always rooting for women. Both. Both the World Cups. जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो अभी अपकमिंग वर्ल्ड कप आ रहे हैं हम, और होप है कि इंडिया बेस्ट देगा अपना। Absolutely. And we also wish Team India all the very best, of course, for both men and women. Ladies and gentlemen, that was Shweta Sehrawat. Let's have a huge round of applause for our young woman achiever. Aarti, over to you. Thank you, Devika. That was a wonderful conversation with Shweta there. Let me quickly introduce our next panel. An interesting session. We're starting off with strong women in politics. Now, this is, of course, we're going to be discussing empowerment of women in politics, in the political sphere. We're going to be having Alka Lamba, the former Delhi MLA. We're going to have Dr. Tina Sharma, General Secretary of the Delhi BJP Mahila Morcha. And I also invite my colleague Megha Sharma, Output Executive Editor, to be moderating the session today. We're going to be having an interesting conversation about the women in politics and how they can change the narrative of political sphere in India. I'm honored that I have two very prestigious women in politics sitting with me side by side. मैं सबसे पहले मेरा सवाल अलका लांबा जी से शुरू करना चाहती हूँ। फॉर्मर दिल्ली की MLA हैं, और अलका जी, मैं सबसे पहला आपका सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में कैसी रही है। आप यूथ पॉलिटिक्स में सबसे पहले आगे रही हैं। आपने कॉलेज से ये शुरू कर लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस। तो ये आपका पूरा जो जर्नी है, ये किस तरह से बढ़ी? पहले तो मैं ऐश्वर्या जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित आज ये डिस्कशन रखा है, जिसकी इस समय सख्त जरूरत भी थी। दूसरी बात, सफर की बात करेंगे तो 3 दशक का मेरा सफर है। 30 साल हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने पूरे किए हैं। इन 30 सालों में बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष देखा, और अभी भी उससे गुजर रहे हैं। अंत नहीं हुआ उन संघर्षों का। आपने कहा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, नहीं, आपने गलत कहा। 25 साल कांग्रेस, 5 साल आम आदमी पार्टी, और फिर घर वापसी कांग्रेस में मैंने की, क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये लोकतंत्र का सबसे एक बड़ा मंच है। आपने महिलाओं की बात उठाई है। बिल्कुल, आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं, पंचायती राज में महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिया। आज 15 लाख महिलाएं पंच और सरपंच हैं। ये एक सोच का नतीजा है जो कभी सत्ता में थी, उस सोच की वजह से। नगर निगम में आपने देखा 50% महिलाओं को मिला आरक्षण। आज हमारी 100 से अधिक महिलाएं दिल्ली के अंदर जो है वो मेयर हैं या पार्षद हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर आज इसलिए भी कहा ऐश्वर्या जी, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी थी कि संसद का सत्र चल रहा है। 9 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं और महिला आरक्षण बिल अभी तक टेबल नहीं हुआ, चर्चा के लिए नहीं आया। इसलिए आज की चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश की संसद चल रही हो। और राजनीतिक स्तर पर, मैं आर्थिक स्तर पर भी कहूंगी, सामाजिक स्तर पर भी कहूंगी, और राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं का हक अभी उन्हें मिला नहीं। ये लड़ाई अभी हम सब की मिलकर जारी है, पर मुझे पूरा विश्वास है इस लड़ाई को हम सब जीतेंगे। अलका जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीजेपी के रूल के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं विमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो टॉयलेट्स फॉर विमेन, आवास, चाहे वो LPG गैस कनेक्शंस हो। अब आप ऑपोजिशन में रह के, कांग्रेस में रह के, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, और कांग्रेस में रह के आप क्या चीज़ें कर सकती हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए, गिलास आधा भरा है, आधा खाली है। जो सत्ता है वो आधा भरा हुआ गिलास का जिक्र करेगी, पर विपक्ष का ये धर्म रहता है कि जो गिलास आधा है, आधी आबादी का जो हक आधा है, मेरी आजादी पर जो हमला है,
मैं उसकी बात करूंगी। ये मेरा विपक्ष में रहते हुए धर्म है। हक ये है कि महिलाओं की आजादी, आपने लिखा वी विमेन वांट, हम क्या चाहती हैं? हम वो आजादी चाहते हैं जो संविधान में हमें मिली है। हम उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। आप बिंदी नहीं लगाती, मैं लगाती हूं। आप बुर्का पहनती हैं, आप नहीं पहनती हैं। ये किसका हक है? ये कौन तय करेगा? ये आप और हम तय करेंगे, ये हमारा संविधान तय करेगा। लेकिन आज ये इस पे भी हमारा महिला को, मैंने देखा 8 मार्च का दिन था, महिला दिवस का दिन था, और एक महिला उस महिला दिवस वाले दिन अपने हाथ के बनाए हुए आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हुए कुछ स्टॉल लगाया था। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठा एक सांसद उसे आकर कहता है, जलील करता है कि तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई। तो मैं बस ये कहूंगी, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो हिजाब हो, वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये हमारी आजादी है, इसे मत छीनिए हमसे।